अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर फिजिक्स बुक। पेज नंबर आपकी बुक का है 263। टॉपिक हमारा है 12.4 रेडियो एक्टिविटी। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी। इससे पहले भी आप ये टॉपिक बेटे अपने 9th एंड 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। ईजी टॉपिक है, लेकिन थोड़ी सारी जैसे जैसे आप सीनियर क्लासेस में जाते रहते हैं ना, तो आपकी टॉपिक्स बेसिकली वही रहते हैं, लेकिन आपकी एक्सप्लेनेशन बेटे बढ़ती जाती है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन हम इसको जो है अच्छी तरह से समझेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। 12.4 radioactivity. It has been observed that the nuclei whose atomic number are greater than 82 are found naturally unstable. These nuclei spontaneously emit radiation. Such nuclei are called radioactive, and the emission of radiation is known as natural radioactivity. These radiations are of three types: alpha particles, beta particles, and gamma radiations. Unstable isotopes can also be produced artificially in the laboratory by nuclear reaction. This occurs when a stable element is bombarded with high energy particles such as neutron, protons, alpha particles, or gamma rays, causing it to become unstable and emit radiation. This is called artificial radioactivity, and radioactive isotopes are named radioisotopes or radionuclides. The alpha particles, beta particles, and gamma radiations are transported differently when passed through the electric field. As shown in figure 12.4, it has been seen that alpha particles deflect toward the negative terminal of the electric field, showing they have a positive charge. The alpha particles are emitted at high speed, typically a few percent of the speed of light. However, the alpha particle can travel only several centimeters in the air due to their large mass. The beta particles deflect toward the positive terminal of the electric field, showing they have negative charge. The deflection of beta particles is more than the alpha particles, proving that they are lighter particles than alpha particles. The beta particles are fast moving electron and move with the speed up to 0.9995 of the speed of light. The gamma radiation pass through the electric field without deflection, showing they have no charge. The gamma radiations are electromagnetic radiation which consist of photons. They move with speed of light with the highest penetrating power but the lowest ionization power. The process of emitting alpha particles, beta particles, and gamma radiations from the nucleus is called alpha decay, beta decay, and gamma decay respectively, and are discussed below. मैंने जो टॉपिक अभी रीड किया बेटे, दैट इज रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी, व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी। सबसे पहले यहाँ पे आप क्या चीज़ याद करोगे, आप याद करोगे इसकी डेफिनेशन की रेडियो एक्टिविटी बेसिकली होती क्या है। ठीक है, आपकी बुक में भी इसकी डेफिनेशन दी हुई है, मैं भी आपको इसकी डेफिनेशन बताती हूँ, वो भी आप राइट कर सकते हैं। रेडियो एक्टिविटी एक स्पॉन्टेनियस एमिशन है किसकी, पार्टिकल्स की, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रॉम अनस्टेबल न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी भी एटम का जो अनस्टेबल न्यूक्लियस है उसके अंदर से बेटे स्पॉन्टेनियस यानी कि इकट्ठे एकदम एक साथ कुछ पार्टिकल्स की एमिशन होती है। उस पूरे फिनोमेना को, उस स्पॉन्टेनियस एमिशन को हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। उसकी डेफिनेशन आप लोग राइट कर लो। मैंने क्या डेफिनेशन बताई, मैंने आपको बताया कि रेडियो एक्टिविटी इज द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ पार्टिकल्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रॉम द अनस्टेबल न्यूक्लियस ऑफ एटम। यहाँ पे दो चीज़ें हैं जो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। जो मैं आपको डेफिनेशन बता रही हूँ, सिर्फ न्यूक्लियस नहीं मैंने बोला, मैंने क्या कहा, अनस्टेबल न्यूक्लियस। ठीक है, और दूसरी चीज़ मैंने क्या कही, स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन। आप सिर्फ राइट नहीं करोगे, जब भी आप डेफिनेशन याद राइट करोगे तो आपने यहाँ पे मेंशन करना है स्पॉन्टेनियस एमिशन। ठीक है, और एमिशन किस चीज़ की, एमिशन ऑफ पार्टिकल्स या बेटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का एमिशन जो है किसी भी अनस्टेबल न्यूक्लियस में से, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उस फिनोमेना को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। ये फिनोमेना कब होता है, ठीक है, अब हम ये देखेंगे ये फिनोमेना कब होता है। ये फिनोमेना
पूरा जो रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस है ये तब होता है जब एटॉमिक न्यूक्लियस जिसका एटॉमिक नंबर बेटे 82 से ज़्यादा हो। क्या मैंने कहा? उस न्यूक्लियस की बात हो रही है। ये फिनोमेना यानी कि जो रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना है ये कब होगा, कहाँ होगा? ये कब होता है जब एटॉमिक न्यूक्लियस जिसका एटॉमिक नंबर बेटे 82 से ज़्यादा हो, वो क्या करेगा? इट लूज एनर्जी। और वो अपनी एनर्जी किस तरह से लूज करेगा बेटे? बाय एमिटिंग रेडिएशन। वो यानी कि रेडिएशन के ज़रिए जो है अपनी एनर्जी लॉस करता है। और वो रेडिएशन किसकी फॉर्म में होती हैं? वो होती हैं अल्फा पार्टिकल्स की फॉर्म में, बीटा पार्टिकल्स की फॉर्म में, या गैमा रेज की फॉर्म में। इज दैट क्लियर? समझ आ गई ना अब तो कि हमने क्या पढ़ लिया? हमने रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन मैंने आपको बताई, वही आपने राइट करनी है, ठीक है? ज़्यादा बेस्ट डेफिनेशन है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये जो फिनोमेना है ये इट अकर्स व्हेन एटॉमिक न्यूक्लियस आर ग्रेटर देन, यानी कि एटॉमिक न्यूक्लियस का जो एटॉमिक नंबर होगा डेट इज ग्रेटर देन 82, इट लूज एनर्जी बाय एमिटिंग रेडिएशन। और ये जो रेडिएशन एमिट करेगा डेट आर इन द फॉर्म ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड बीटा पार्टिकल और गैमा रेस की फॉर्म में हो सकता है। और ये जो एटम्स होते हैं ये मतलब जो एटम, डिफरेंट टाइप के एटम्स की बात होती है ना, तो वो एटम जो ये फिनोमेना शो करते हैं यानी कि रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना या इस तरह का बिहेवियर शो करते हैं, इनको हम लोग कहते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, या इनको हम लोग रेडियो न्यूक्लियोलाइड्स कहते हैं। इनको जो रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस शो करेंगे एटम, क्या कहेंगे उनको? हम लोग कहेंगे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कहेंगे, ठीक है? तो हमने यहाँ पे दो तरह की डेफिनेशंस पढ़ ली। एक हमने पढ़ लिया रेडियो एक्टिविटी, और एक मैंने आपको क्या बता दिया? रेडियो आइसोटोप्स या रेडियो न्यूक्लियोलाइड्स क्या होते हैं, ठीक है? इनको अंडरलाइन करो, रेडियो आइसोटोप्स और रेडियो न्यूक्लियोलाइड को। तो उसके बाद आती है टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी की बेटे दो टाइप्स होती हैं, एक होती है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, और जो दूसरी हमारे पास आएगी डेट इज नोन एज आर्टिफिशियल या इंड्यूस, ठीक है? दो तरह की रेडियो एक्टिविटी होगी, एक हमारे पास होगी नेचुरल और दूसरी कौन सी होगी? उस दूसरी को क्या नाम देंगे हम? आर्टिफिशियल या इंड्यूस रेडियो एक्टिविटी। वन बाय वन इन दोनों फॉर्म्स की मेन मैं आपको ज़रा बता देती हूँ। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी क्या होती है बेटे? स्पॉन्टेनियस एमिशन जब रेडिएशन की होगी बाय सर्टन नेचुरल अकरिंग जो अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियाई हैं जो हमारी इन्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो इन्वायरमेंट के अंदर फाउंड होते हैं, उनके अंदर से जब एमिशन होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। मैंने क्या बता दिया कि स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन बाय सर्टन नेचुरली अकरिंग अनस्टेबल न्यूक्लियाई से जो होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे? नेचुरल रेडियो एक्टिविटी कहेंगे। और कॉमन एग्जांपल इसकी क्या है कि ये जो न्यूक्लियाई डिके है ये इनका डिके जो है इनके मतलब खुद से ही होता है, बाय देयर ओन, विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस होता है। कॉमन एग्जांपल जो है ये अल्फा, बीटा, गैमा रेडिएशंस हैं, और ये इस तरह के एलिमेंट्स में होती हैं जिनका एटॉमिक नंबर लार्ज होता है। कॉमन एग्जांपल इनकी है यूरेनियम U38 है, थोरियम है, रेडॉन है, ये सब के सब जो हैं ये नेचुरल हैं, ठीक है? दे आर नेचुरल रेडियो एक्टिविटी शो करेंगे, और ये नेचुरली प्रेजेंट होते हैं। ये रॉक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं बेटे, सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और इवन ह्यूमन बॉडी में भी जो है ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? तो हमने क्या पढ़ लिया? मैं आपको बता रही हूँ कि रेडिएशन जो है इनकी दो टाइप्स है। एक कौन से हो गए? नेचुरल हो गए, और एक हमारे पास कौन से हो गए? आर्टिफिशियल हो गए। नेचुरल मैंने आपको बता दिए। अब हम बात करते हैं किसकी? आर्टिफिशियल की या इंड्यूस रेडियो एक्टिविटी की। वो प्रोसेस जिसमें स्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियाई जो हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं इनटू अनस्टेबल न्यूक्लियाई बाय ह्यूमन इंटरवेंशन, यानी कि नेचुरली नहीं बल्कि ह्यूमंस की वजह से, या यूजुअली जो है वो किसी ना किसी न्यूक्लियर रिएक्शंस की वजह से। और वहाँ पे जनरली हमारे पास क्या चीज़ इन्वॉल्वमेंट होती है बेटे? बम्बार्डमेंट इन्वॉल्व होती है, सच एज न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल से। जब हम लोग जो है बम्बार्डमेंट करेंगे, डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियर रिएक्शन करेंगे, तो तब हमारे पास ये रेडियो एक्टिविटी आएगी, डेट इज़ नोन एज आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, ठीक है?
तो हमने क्या कर लिया, हमने अब ये भी चीज़ पढ़ ली कि रेडियो एक्टिविटी की दो टाइप्स हैं, एक है नेचुरल और एक कौन सी हो जाएगी, आर्टिफिशियल हो जाएगी। उसके बाद आती है आपकी डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी, कि रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर किस तरह होती है। रेडियो एक्टिविटी बेटे सबसे पहले फर्स्ट डिस्कवर हुई थी एक्सीडेंटली बाय अ साइंटिस्ट नोन एज हेनरी इन 1896, ठीक है। और इसने इसको फाउंड किया था इन यूरेनियम साल्ट, और इसने देखा था कि यूरेनियम साल्ट जो है इट इमिट इनविजिबल रेज, यूरेनियम साल्ट जो है वो इनविजिबल रेज को इमिट करता है, और वो जो है बाद में इट ब्लैकन द फोटोग्राफिक प्लेट, ठीक है। इसके अलावा आगे फर्दर हमारे पास मैरी क्यूरी आए थे, पेरी क्यूरी आए थे, उन्होंने फर्दर जो है इस में रेडियो एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा बेटे रिसर्च की थी, और इन्होंने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जैसे कि पोलोनियम है, रेडियम है, उनको भी जो है वो डिस्कवर किया था। और फिर आगे फर्दर जो है रेडियो एक्टिविटी पे जो है वो डिस्कवरीज होती गई और जो है रिसर्च होती गई, और मॉडर्न न्यूक्लियर फिजिक्स में अब जो है हमारे पास जो है मेडिसिन और फिजिक्स में भी जो है इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन जो हैं वो देखने में हमें मिल रही हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं एक्सपेरिमेंट एक करेंगे, हम उस एक्सपेरिमेंट में हम डिटेक्ट करेंगे कि नेचर जो है रेडिएशंस का वो कैसा है, और किसी भी न्यूक्लियोलाइड से जो है वो रेडिएशन किस तरह से एमिट होती हैं, वो सारा हमने पढ़ना है। इसकी एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे सिंपल आपको एक्सपेरिमेंट किया है कि अल्फा बीटा और गैमा पार्टिकल जो हैं ये रेडिएशन जो है ये ट्रांसफर होती हैं डिफरेंटली, ठीक है, जब इनको किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड से पास किया जाए, ठीक है। आपकी बुक में यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ की गई है, यही डायग्राम मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी, और मैं आपको अच्छी तरह से एक्सपेरिमेंट पूरा करके दिखाऊंगी, ठीक है। मेन पॉइंट्स मैं भी बता देती हूँ, दोबारा अगेन भी हम एक दफ़ा पढ़ लेंगे कि अल्फ़ा पार्टिकल्स यहाँ पे हमें मिलेंगे। अल्फ़ा पार्टिकल्स के ऊपर हमारे पास क्या आएंगे, मतलब अल्फ़ा पार्टिकल जो हैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप के हम पार्टिकल्स देखेंगे, अल्फ़ा देखेंगे, बीटा देखेंगे और गैमा देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अल्फ़ा पार्टिकल की। अल्फ़ा पार्टिकल जो हैं बेटे वो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं टूवर्ड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अल्फ़ा पार्टिकल जो हैं वो डिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है। उसके बाद अल्फ़ा पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अल्फ़ा पार्टिकल जो हैं हाई स्पीड से जो हैं वो एमिट होते हैं। ये तीन यहाँ पे मेन पॉइंट्स आपकी बुक में दिए गए हैं, और फ्यू % ऑफ द जो है इनकी है जो है स्पीड होगी लाइट की। उसके बाद अल्फ़ा पार्टिकल जो हैं ये ट्रैवल करते हैं ओनली सेवरल मीटर्स इन द एयर, बिल्कुल फ्यू सेंटीमीटर जो है वो एयर में ट्रैवल करते हैं। क्यों, वाई, बिकॉज ऑफ देयर लार्ज मास, क्योंकि इनका मास जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो आएंगे डैट आर बीटा पार्टिकल्स आएंगे। बीटा पार्टिकल जो हैं बेटे ये डिफ्लेक्ट होते हैं टूवर्ड पॉजिटिव टर्मिनल। यहाँ पे भी अगर आप डायग्राम देखो तो ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ की तरफ जो है ये मूव करेंगे, और इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, और जो डिफ्लेक्शन बीटा पार्टिकल की होती है बेटे ये एज कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल ज़्यादा होती है। यानी कि आप यूं कह सकते हो कि डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल इज मोर देन बीटा पार्टिकल इज मोर देन अल्फा पार्टिकल। और इस चीज़ से इसकी डिफ्लेक्शन को देखते हुए बेटे ये चीज़ प्रूव हो चुकी है। इट इज़ और ये जो इसकी डिफ्लेक्शन है हमने अभी पढ़ा कि जो बीटा पार्टिकल्स हैं उनकी डिफ्लेक्शन अल्फा पार्टिकल से ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हैं बीटा पार्टिकल जो हैं दे आर लाइटर, ठीक है, दे आर लाइटर देन अल्फा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल जो है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इनकी स्पीड जो है वो कितनी होती है 0.999 जो है ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। आपकी बुक में यहाँ पे राइट भी लिखा भी हुआ है, इसको आप अंडरलाइन भी कर लो, ठीक है। बीटा पार्टिकल की स्पीड भी बताई गई है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आते हैं वो आती हैं गैमा रेडिएशन। गैमा रेडिएशन जो है बेटे दे पास टू इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट डिफ्लेक्शन, यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में से विदाउट डिफ्लेक्शन जो है ये पास हो जाती हैं। और इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि इनमें डिफ्लेक्शन नहीं हुई, इसका मतलब हुआ कि इनके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा, दे हैव नो चार्ज। और गैमा रेडिएशन जो है दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इट कंसिस्ट ऑफ फोटोन। गैमा रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स, इनके अंदर फोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और दे मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, ये लाइट की स्पीड से मूव करेंगी विद द हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर। और इनकी जो पेनिट्रेशन पावर है बेटे वो सबसे ज़्यादा हाई होती है। ये भी आपने यहाँ पे याद रखना है, लिखा भी हुआ है, इसको भी अंडरलाइन कर लो। लेकिन इनकी जो आयनाइजेशन पावर है वो सबसे ज़्यादा
कम होती है। इज डेट क्लियर? मैंने क्या कह दिया कि इनकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होती है, आयनाइजेशन पावर इनकी कम होती है। आपकी बुक में यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है, डायग्राम दी हुई है, वो डायग्राम मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी और उसको हम ड्रा करेंगे और फर्दर आगे जो है दोबारा से मेन पॉइंट इस चीज़ के हम रिकॉल करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द डायग्राम ऑफ द एक्सपेरिमेंट जो आपकी बुक में दी हुई है। इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इस पर अगर नोट आएगा तो बेटे आपने ये डायग्राम मस्ट साथ ड्रॉ करनी है। हम पढ़े हैं रेडियो एक्टिविटी, यहाँ पे मैं हेडिंग दे लेती हूँ रेडियो एक्टिविटी की, ठीक है, जो हमारा आज का प्रोसेस है। देन हम इसकी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। डायग्राम ड्रॉ करके मैं आपको डायग्राम के साथ ही इसको जो है अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगी, आपके पास फर्दर एक क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। रेडियो, RADIO, रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। हमारा टॉपिक क्या था? रेडियो एक्टिविटी। सिंपल सी डायग्राम है, लेकिन जब भी कभी आपके ऊपर इसके ऊपर नोट आता है तो आपने ये डायग्राम बेटे यहाँ पे लाजमी ड्रॉ करनी है, ठीक है। सिंपल यहाँ पे हमने क्या लेना है, एक ब्लॉक लेंगे, बहुत इजी डायग्राम है, ठीक है। डायग्राम बेटे आपको पता है, पहले भी मैं हमेशा आप लोगों के सामने ही ड्रॉ करती हूँ, ताकि जिन बच्चों से अगर ड्रॉ नहीं होती तो मेरे साथ साथ ड्रॉ करेंगे तो आपसे इजीली ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपने एक ब्लॉक बनाना है। ब्लॉक बनाना बहुत इजी है, ऐसे डायग्राम बनाओ जैसे मैं बना रही हूँ, ठीक है। ये डॉटेड लाइन में बना लेंगे, यहाँ पे जैसे हम क्यूब बनाते हैं ना, बिल्कुल क्यूब की तरह का बना रहे हो आप लोग, ठीक है। ये डॉटेड लाइन, यहाँ पे थोड़ा सा इसको डार्क कर लो, यहाँ पे फिर डॉटेड लाइन, और इसको इस लाइन के साथ हम ज्वाइन कर देंगे। क्लियर? इस तरह आपने इसको बना दिया। अब यहाँ से आपने क्या करना है, ये एक सर्कल बनाओ। इस सर्कल को हल्का सा, दिस इज रेडियो एक्टिव मटीरियल, ठीक है। ये हम कोई भी मटीरियल लेंगे जिसको हम क्या कह देंगे, रेडियो एक्टिव मटीरियल कह देंगे। ये यहाँ से पास होगा, ठीक। यहाँ पे ऐसे आपने ड्रॉ करना है, यहाँ पे भी आपने कुछ ड्रॉ करना है, ठीक है। क्लियर है बेटे? बिल्कुल ऐसे पहले ड्रॉ करो, देन मैं आपको इसको लेबल करती हूँ और आपको एक्सप्लेन करती हूँ डायग्राम के ये एक्सपेरिमेंट हमारा क्या था, ठीक है। क्लियर? ऐसे ही ड्रॉ करें जैसे मैं कर रही हूँ, ठीक। क्लियर? अब इसको यहाँ से बंद कर दें। यहाँ से हमारे पास 3 रेज निकलेंगी। एक रे स्ट्रेट जाएगी, एक रे हमारी यूँ हो जाएगी, और एक रे आपकी इस तरह से नीचे की तरफ आ जाएगी, ठीक है। ये ऊपर की तरफ ऐसे हो जाएगा। ये हमारी इसी तरह यहाँ पे आप लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों को आप फिर इसी तरह से मिला दो, और इसको भी आपने ऐसे ही ज्वाइन कर देना है एज इट इज़, ठीक है, जैसे मैं कर रही हूँ। क्लियर कर दिया? एक रफ स्केच ही बना रही हूँ मैं, आप लोग जब पेपर में बनाने लगो तो स्ट्रेट लाइन जो हैं वो आप ड्रॉ कर लेना, ठीक है। क्लियर हो गया? अब हम सिंपल, बस ये हमारी डायग्राम है, नथिंग। अब हम क्या करेंगे, इसकी लेबलिंग कर लेते हैं बेटे, ठीक है। लेबलिंग में क्या करना है आपने, दिस इज नोन एज लेड ब्लॉक। इसको क्या कहते हैं हम लोग? लेड ब्लॉक कहते हैं, LEAD, लेड, BLOCK, ब्लॉक। ये क्या चीज़ है? लेड ब्लॉक है। लेड ब्लॉक के अंदर ये क्या है, दिस इज नोन एज रेडियो एक्टिव मटीरियल, RIAL। ये रेडियो एक्टिव मटीरियल कह लो, या इसको हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस भी कह सकते हैं। कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हमने लिया यहाँ पे। ये पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, ठीक है। और ये प्लेट्स हैं हमारे पास, जिनको हम लोग क्या कह लेंगे, इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट्स, ठीक है। यहाँ पे 3 तरह की रेज जो हैं वो निकलेंगे, एक ये है, एक ये है, और एक वो है जो डिफ्लेक्शन नहीं हुई, वो स्ट्रेट गई।
दिस इज नोन एज बीटा रे, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेंटर वाली को गैमा रे, इसको क्या कह लेंगे हम लोग, गैमा रे। और जो नीचे वाली है दिस इज नोन एज अल्फा रे, ठीक है। ये बेटे रेज होगी और दिस इज नोन एज, इसको हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट, PLATE। इज डेट क्लियर। ये सिंपल सी यहाँ पे डायग्राम है जो आप लोगों ने ड्रॉ करनी है, ठीक है। और इसमें कुछ भी नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, फटाफट से आप ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे हमने बेसिकली क्या था एक्सपेरिमेंट और कैसा, अभी अब मैंने आपको बता भी दिया ऑलरेडी। अब आप डायग्राम देखो ना, ड्रॉ कर लिया आप सब ने, उसी डायग्राम को देखते हुए जो है मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूँगी। ओके बेटे, आपने ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। अब आपको सारा वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप मैं दोबारा से एक दफ़ा मेन पॉइंट्स रिकॉल करती हूँ, देन हम अपने एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ी रेडियो एक्टिविटी। मैंने आपको रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन क्या बताई, रेडियो एक्टिविटी इज अ स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, रेडियो एक्टिविटी इज द स्पॉन्टेनियस, TANEOU, a spontaneous emission of particles, emission of particles, particles from the unstable nucleus of an एटम, ठीक है। ये क्या हो गया, रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन है, जो मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन अब मैंने दोबारा से आपको रिटन फॉर्म में यहाँ पे लिख दी है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि बेटे वो एटम जो इस बिहेवियर को शो करते हैं, इस बिहेवियर को एग्जिबिट करते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कहते हैं, या उनको हम लोग क्या कहते हैं, रेडियो न्यूक्लाइड कहते हैं, ठीक है। क्लियर है। देन मैंने आपको बताया था देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी। एक हमारे पास कौन सी आती है, दैट इज नोन एज नेचुरल, ठीक है। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी कहते हैं उसको हम लोग, ठीक है। और सेकंड फॉर्म मैंने आपको क्या बताया था, सेकंड इज नोन एज आर्टिफिशियल, ठीक है। जैसे ये अब हम कर रहे हैं, दिस इज नोन एज आर्टिफिशियल, जो खुद से हम करेंगे, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। क्लियर। कोशिश मेरी होती है कि पॉइंट वाइज लिख दूं, ताकि अगर आप लोग इस पर नोट भी लिखना चाहो ना, तो इजीली इसको देके आप नोट बना सकते हो। हमने पढ़ा कि नेचुरल रेडियो एक्टिविटी जो है, इट इज अ स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन naturally by certain naturally occurring unstable atomic nuclei found in the environment। कॉमन एग्जांपल मैंने आपको बताई थी थोरियम की, रेडॉन की, और ये नेचुरली प्रेजेंट होते हैं किसमें, रॉक में, सॉइल में, वाटर में, और इवन इन द ह्यूमन बॉडी। दूसरी रेडियो एक्टिविटी की टाइप मैंने आपको क्या बताई थी, आर्टिफिशियल। मैंने बताया था ये वो प्रोसेस है जिसमें स्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियाई जो है उसको ट्रांसफर किया जाता है किसमें, अनस्टेबल न्यूक्लियाई में, और ये किसके जरिए होता है, बाय ह्यूमन इंटरवेंशन। और कॉमन एग्जांपल इसकी क्या थी, न्यूक्लियर रिएक्शन से, जिसमें बम्बार्डमेंट जो है वो इन्वॉल्व होती है। और फिर हमने इसकी डिस्कवरी पढ़ी थी, मैंने आपको साइंटिस्ट बताए कि किसने इसकी डिस्कवरी की थी। उसके बाद फर्दर हमारे पास दो और साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने काफ़ी सारा उनका जो है आगे इस पर रिसर्च वर्क था। उसके बाद हम आते हैं बेटे इस पे एक्सपेरिमेंट की तरफ। एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया कि अल्फा, बीटा और गैमा रेडिएशन जो है वो ट्रांसफर होती हैं डिफरेंटली जब उनको किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड से जो है वो पास किया जाए, ठीक है। और ये चीज़ ऑब्जर्व की गई कि अल्फा पार्टिकल्स, यहाँ पे देखो ये क्या चीज़ है आपके पास बेटे, ये एक लेड ब्लॉक है,
लेड का बना हुआ ब्लॉक है। इस ब्लॉक के अंदर हमने अपना एक मटेरियल रखा दैट इज नोन एज रेडियो एक्टिव मटेरियल या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। अब जब उनकी हमने बम्बार्डमेंट की तो यहाँ से हमें 3 डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स नजर आएंगे, एक अल्फा पार्टिकल, एक बीटा पार्टिकल और एक हमारे पास गैमा रेज होंगी। यहाँ पे 2 हमने इलेक्ट्रिक जो है चार्ज प्लेट्स यहाँ पे प्लेस की, एक हमारे पास पॉजिटिव प्लेट थी, एक हमारे पास नेगेटिव प्लेट थी और यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस पे हमने क्या चीज़ प्लेस की, फोटोग्राफिक प्लेट। जब यहाँ पे बेटे हमारे पास, अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, पूरा एक्सपेरिमेंट आपके कोर्स में नहीं है, जस्ट मेन मेन पॉइंट्स हैं। अच्छा, यहाँ पे एमिशन होती है हमारे पास किसकी, 3 रेस की, ठीक है। और यहाँ पे 3 रेस कौन कौन सी हैं, अल्फा रे है, बीटा रे है और गैमा रे है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे अल्फा रे की। अल्फा रे जो है बेटे इट डिफ्लेक्ट टूवर्ड पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट, ये है अल्फा रे, ठीक है। अल्फा रे जो है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ जो है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करेगी, ठीक है। और ये नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती हुई, ये नेगेटिव टर्मिनल है ना, नेगेटिव, और ये पॉजिटिव टर्मिनल है चार्ज प्लेट का। अभी इसकी डिफ्लेक्शन हुई और ये नेगेटिव की तरफ मूव करेगी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रे आ रही है, इस रे के ऊपर कौन सा चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अल्फा रे हैज पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर हम क्या कह लेंगे, इट हैज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और अल्फा पार्टिकल जो हैं बेटे ये एमिट होते हैं एट हाई स्पीड, टिपिकली few % ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। और दूसरी चीज मैंने क्या बताई थी कि अल्फा पार्टिकल जो हैं दे कैन ट्रेवल ओनली सेवरल सेंटीमीटर इन द एयर, ये एयर में सिर्फ फ्यू सेंटीमीटर जो है ये ट्रेवल करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इनका मास जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था बीटा पार्टिकल्स। ऊपर जाओ, यहाँ पे देखो आपको बीटा रेज नजर आएंगी, दे आर बीटा पार्टिकल, और बीटा पार्टिकल डिफ्लेक्ट होते हैं टूवर्ड ऑपोजिटली, यानी कि पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होंगे। इसका मतलब ये होगा कि बीटा के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, बीटा रे के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इनकी डिफ्लेक्शन जो है वो क्या होती है बेटे, ज़्यादा होती है। बीटा रे या ये कह सकते हो द डिफ्लेक्शन ऑफ बीटा पार्टिकल इज मोर देन अल्फा पार्टिकल, बीटा रे की डिफ्लेक्शन अल्फा पार्टिकल से बेटे ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बीटा पार्टिकल्स हैं वो लाइटर होते हैं एज कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल, ये इनका मास ज़्यादा होता है, ये हैवी होते हैं, ये लाइटर होते हैं। और दूसरी मेन पॉइंट आप पे याद रखना है कि जो बीटा पार्टिकल्स हैं ये जो है दे आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, ये बहुत फास्ट मूविंग है, ठीक है, दे आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, ये पॉइंट भी आप याद रखोगे। और इनकी जो स्पीड है ये अप टू 0.995 ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट है बेटे, ठीक है। और उसके बाद आते हैं हमारे पास हमारी गैमा रेडिएशन। गैमा रेडिएशन जो है ये पास होती हैं थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड बेटे विदाउट डिफ्लेक्शन, इनके अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी, ये विदाउट डिफ्लेक्शन यहाँ से पास हो जाएंगी, स्ट्रेट चली जाएंगी। इसका मतलब हुआ कि इनके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता, दे हैव नो चार्ज, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुई और ये स्ट्रेट यहाँ से मूव कर जाएंगी। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, इनके अंदर फोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं बेटे, फोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और जो इनकी मूवमेंट है, जो इनकी स्पीड है, दे मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट, ये स्पीड ऑफ लाइट की तरह से जो है ये मूव करते हैं। आपने यहाँ पे ये बात मेंशन करनी है कि दे मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट। और इनकी जो पेनिट्रेशन पावर होती है, जो पेनिट्रेटिंग पावर है बेटे, वो इन दोनों की निस्बत जो है वो ज़्यादा होती है। दे हैव आप हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर, लेकिन इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है, आयनाइजेशन पावर है, वो क्या है, वो सबसे कम है। 2 मेन पॉइंट्स मैंने यहाँ पे बता दिए ना। जो गैमा रेडिएशंस हैं बेटे, इनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो हाईएस्ट है। दूसरी मैंने बात क्या बताई कि इनकी जो आयनाइजेशन पावर है वो लोएस्ट है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है मीटिंग का प्रोसेस है अल्फा, बीटा और गैमा रेडिएशन का फ्रॉम न्यूक्लियस, ये इस न्यूक्लियस में से जो ये 3 रेज एमिशन हुई हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। और ये प्रोसेस हमने जो है अभी डिटेल से पढ़ा। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में मैं आपको अल्फा डिके, बीटा डिके और गैमा डिके के बारे में हम जो है वो डिटेल से जो है वो अगले कमिंग लेक्चर में पढ़ेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए
आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है। और जब भी कभी आपकी बुक में जो है वो एक्सपेरिमेंट आता है तो बेटे आपने इस तरह से ही कोशिश करनी है जिस तरह से मैंने आपको भी आज बताया है, ऐसे ही आप नोट करो, राइट करो। पहले आपने क्या लिख देना है, रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन लिखनी है। रेडियो एक्टिविटी की ईजीएस्ट डेफिनेशन मैंने यहाँ पे आपको राइट कर दिया, आपने यही डेफिनेशन राइट करनी है। उसके बाद आपने बताना है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स क्या होते हैं या रेडियो न्यूक्लियाइड का होते हैं। मैंने आपको बताया कि वो एटम जो एग्जिबिट करें रेडियो एक्टिविटी की बिहेवियर को, या वो एटॉमिक न्यूक्लियस जिनका एटॉमिक नंबर 82 से बेटे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इस तरह के इनको हम लोग क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कहते हैं, या इनको हम लोग रेडियो न्यूक्लियाइड्स कहते हैं। फिर आपने क्या लिखना है, रेडियो एक्टिविटी की टाइप्स लिखनी है। देयर आर 2 टाइप, एक है नेचुरल और एक है आर्टिफिशियल। दोनों की एग्जांपल्स भी मैंने आपको बता दी। आपने इनकी डेफिनेशंस लिखनी है। नेचुरल में क्या मैंने बताया था कि ये स्पॉन्टेनियस एमिशन है रेडिएशन की बाय सर्टन नेचुरल अकरिंग अनस्टेबल न्यूक्लियाई। और आर्टिफिशियल में मैंने क्या बताया था, ये वो प्रोसेस है जिसमें स्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियाई जो है उनको ट्रांसफर किया जाता है इनटू अनस्टेबल, ठीक है। आपने इनकी डेफिनेशंस लिखनी है, इनकी एग्जांपल लिखनी है। उसके बाद बेटे आपने एक्सपेरिमेंट की हेडिंग देके ये पूरी डायग्राम बनानी है और एक्सपेरिमेंट लिखना है। एक्सपेरिमेंट के बाद आपने इन तीनों रेस की जो है मेन 3-4 प्रॉपर्टीज़ मैंने बताई हैं वो आपने राइट कर देनी है। इस तरह से ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। आई होप कि आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। यहीं पे बेटे मैं अपना टॉपिक ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। फर्स्ट ईयर टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।